So back to cricket now. And first 3 overs is over to Ajay Gharat. Thanks a lot, Siddiq Babe. This is the last game of the day. FR Sports up against Balaji Sports. FR Sports have won the toss and elected to bat first in this game. Huge applause from the crowd as both the openers are making their way into the center. बेस्ट ऑफ लक बालाजी स्पोर्ट्स को और कासिम बाबू को इस वक्त हुसैन राजस्थानी ने दिया है. Moin and Zurer are the openers. First ball. Fast and furious, but way outside the off stump wide. Yes, Kasim Babu ball excellent on this wicket in previous tournament. Kasim Babu bowled wonderfully well in previous game. Some extra bounce, but once again wide delivery. Yes, I think not control on his line length is very good, but he bowled away from the off stump. All the best for Balaji from Nikesh Patil, Goe. In the air and over the top of mid-off. Long on fielder cuts it off inside the boundary. Couple of runs for Moin. Yes, Suraj Joshi will cover the area from long on to mid-off, long off and saving 2 runs. Look at that. Not a connect proper middle of the bat, but over goes mid-off. Somnath is there. Only long on and mid-wicket on the boundary. Mid-on is wider. This time, oh, that's a good effort. Fielder at cover, attempted well there, but he put it down in the end. It was struck on the up by the batsman. Have a look at that in replay. Struck on the up, away from the body. Single-handed attempt. Moinuddin survives.
This time just opens the face of the bat, Zurer, and gets a single. गली पे गेंद गई थी, बल्ले के मुंह को बहुत देर से खोला था। वैसे भी गली के चक्कर अच्छे नहीं रहते हैं। और बालाजी के जो 12वें खिलाड़ी हैं सबसे युवा हैं। आज बालाजी स्पोर्ट्स ने भी पूरा 12वां खिलाड़ी नहीं भेजा है, एफआर का है, सॉरी। एफआर के जो 12वें खिलाड़ी हैं वो पूरे 12वें नहीं है। Score 6 runs without loss. Kasim Babu once again. Now that's a waiver delivery. Down to short, fine leg, wide. Third wide. क्या बात है, बालाजी के जीतू मानेरकर को पहली मर्तबा हम ग्राउंड में देख रहे हैं। ये अच्छा सीन है। शॉर्ट फाइन लेग पर इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं। वो जो ऐड है ना कि ये सीन अच्छा है। Some of the Balaji's players have been rested for this game. Sujit is not playing. Nice shot. Gets it over the infield. Looking for two, and he gets it. कमेंटेटर पिंपल घर के मनोज भीड़ ने इस वक्त बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। Too much width on offer. Cut away nicely over the infield, but the outfield is quite slow. Turning out to be a long over from Kasim Babu. That's a fine delivery. Up to the batsman. Incoming movement. Not much footwork from the batsman. Try to play from his crease. Have a look at that. The front leg nowhere near the line. And I think last one was a slightly in-cutter ball. Cutting back to the batsman. Try to york the batsman. Single. And that finished the first over. Good start for FR Sports. 10 without loss. शाहन अंसारी, अशोक पाटिल, मिस्टर नुसरत बोबड़े। एक लंबा ओवर समाप्त हुआ कासिम बाबू का। 3 वाइड गेंदे की उन्होंने। पहले ओवर में 10 रन आए हैं। एफआर स्पोर्ट्स ने बहुत ही रोमांचक मैच में जीत दर्ज की थी। पहले मैच में बंगालपुरा के सामने 87 रनों का उन्होंने लक्ष्य रखा था और बंगालपुरा के बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। आखिरी गेंद पर 1 रन नहीं बना पाए थे। बढ़िया गेंद आफ्ताब की।
बल्कि आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था और विकेट कीपर बंगालपुरा के रोक नहीं पाए थे। पहले बैटिंग की थी बंगालपुरा ने, बीट हुए थे बैट्समैन एफआर स्पोर्ट्स के, लेकिन विकेट कीपर की गलती की वजह से वो चौका चला गया था और आखिरी गेंद पर मैच को जीता था एफआर स्पोर्ट्स ने। और आपको तो पता था कि साहिबा मोमिन लिस्ट चेक कर रहे हैं कि 4 गेंदबाजों को चक दिया था। अब सवाल ये उठता है कि गेंदबाजी कौन करेगा। जी हाँ, ये भी एक समस्या रहेगी। निकल कर खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद। हालांकि कप्तान ने मुझसे कहा था कि 2 गेंदबाज वो लेकर आए हैं। अब वो आम कौन से हैं वो बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छी शुरुआत यहाँ पर आफ्ताब के लिए, 2 लगातार डॉट बॉल्स, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। लॉफ्टेड शॉट मिड ऑफ पर पाए गए, आसान सा कैच सोमनाथ के लिए, पहले विकेट का पतन। ओवर पिच गेंद थी, एलिवेशन जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया और मिड ऑफ पर एक अच्छा कैच लेते हुए सोमनाथ आउट होने से पहले 6 रन बनाए मोइनुद्दीन ने। 10 पर 1 एफआर स्पोर्ट्स। सुफियान शेख आज भी नहीं खेल रहे हैं। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करते हुए बैट्समैन 1 रन। एक रन से अपना खाता खोलते हुए आवेश ने अच्छी बैटिंग की थी पहले मैच में, लेकिन इस समय उनके सामने चुनौती काफ़ी कड़ी है। बालाजी स्पोर्ट्स का बॉलिंग आक्रमण काफ़ी अच्छा है। आफ्ताब अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इस बार बल्ला चलाना चाह रहे थे, आखिर में देखा कि लेग स्टंप को छोड़कर जा रही है, जाने दिया। इस ओवर का पहला वाइड। पहले ओवर में 3 वाइड गेंदें हमने देखी थी। रन संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पर एफआर स्पोर्ट्स की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए, अच्छी धूप मैदान में खिली हुई है। क्रॉस बैटेड शॉट अंदर लगी है, लेकिन खाली क्षेत्र में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कैप्टन ने उठाया और तब तक 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन सूरज जोशी गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी या फिर क्षेत्र रक्षण, अपना 100% हमेशा देने की कोशिश करते हैं। बीमार निकल गई उनके हाथ से, छिटक गई, नो बॉल और फ्री हिट। बहुत ही खतरनाक गेंद थी, बैट्समैन ने किसी तरह से अपने आप को बचाया, हालांकि रिवर्स खेलने की तैयारी में थे। ये देखिए, संतुलन गंवा रहे थे। इस मैच का पहला फ्री हिट। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, वाइलिश मिड विकेट पर सर्कल के अंदर फील्डर, फाइन लेग काफ़ी फाइन है दायरे के अंदर। ऑफ साइड में जितने भी फील्डर्स हैं सभी सर्कल के अंदर नजर आते हुए।
आफ्ताब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, आगे निकले, शॉर्ट पिच गेंद, बढ़िया गेंद थी, फ्री हिट पर बीट किया। अच्छी सोच यहाँ पर आफ्ताब की, देखा कि बैट्समैन आगे निकल रहे हैं। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले के बाद 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एफआर स्पोर्ट्स। दो ओवर में 15 रन बने और कुल मिलाकर 1 विकेट गिराए। रन बहुत कम बने। गेंदबाजी के लिए सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी गेंदबाजी को आए हैं। बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं और कई दर्शक ऐसे हैं जिनका कहना है कि सूरज लाजवाब है। दर्शक भी बहुत ही जानकारी रखते हैं खेल की। भिवंडी की जनता क्रिकेट को काफ़ी चाहती है, अच्छी तरह से देखते हैं कौन सा खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करता है। ये कमेंट्री बॉक्स हमारा दिखाया जा रहा है। साहिबा मोमिन तो काफ़ी सीरियस हो गए। थोड़ा सा आराम, क्योंकि ओवर हुआ था इसलिए वो करते हुए। स्कोर इस समय 15 रन हुआ है। सूरज की पहली गेंद लीडिंग एज, सॉफ्ट डिसमिसल। विकेट टेकर गेंदबाज अगर बी इंडियन के उजैर और उसके बाद हम देखते हैं सूरज, जो ऐसे गेंदबाज है, मनोज भोईर, धनेश कुकसे के, ये विकेट टेकर गेंदबाज है। ये देखिए, समझ ही नहीं पाए थे बैट्समैन, पीछे चले गए और लिविंग एज, सॉफ्ट डिसमिसल। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और थोड़ी सी रुक कर आई गेंद। बड़ी बात है कि इस सीजन में एक बार वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं और 2 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज। आइए फिर से देखते हैं। बहुत बढ़िया कैच। बालाजी स्पोर्ट्स का प्रदर्शन भी काफी अच्छा पिछले 2 टूर्नामेंट्स में यहाँ पर रहा है। एमजे ट्रॉफी और डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी के फाइनल तक ये टीम पहुंची। पिछले कुछ मुकाबलों से हमने देखा कि अभी पाटिल भी फॉर्म में आ गए हैं। ओ, बहुत अच्छी गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, लेग बाय के रूप में रन। बिल्कुल, जहाँ पे तालुका क्रिकेट के महान बैट्समैन भी उनको आज़ादी से नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर नए बैट्समैनों के लिए तो कठिनाइयाँ रहेंगी। उनको पढ़ने के लिए देखना है चाइना में इनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं। रिवर्स शॉट गैप में निकाल दिया है, बढ़िया टाइमिंग और 4 रन। अच्छा एग्जीक्यूशन रिवर्स स्ट्रोक का। बहुत खूबसूरत शॉट। सूरज जोशी के सामने साथ जुटाई थी, वहां पर 4 रन। जुरैर जो कि कैप्टन है एफआर स्पोर्ट्स के, एफआर स्पोर्ट्स की तरफ से हम देखें तो 60 से ज़्यादा रन यदि बनाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर बालाजी स्पोर्ट्स पर वो डाल सकते हैं। इस बार बाहर की तरफ निकल रही थी, दुविधा में थे इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने के। सोचा कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन इससे पहले कुछ समझते गेंद ये देखिए बाहर की तरफ निकल गई थी।
अभी तक इस ओवर से 5 रन आ चुके हैं। स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 1 विकेट इस ओवर में गिरा है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सूरज जोशी। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, पुश किया था गेंद को 1 रन के लिए। आम गेंद की थी, इस मर्तबा अंदर की जानिब लाए थे। ये देखिए आम गेंद थी, स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर। कदमों का इस्तेमाल, चाइनामैन गेंद, लेकिन हवा में जरूर थी। बैकआउट ऑफ द पॉइंट के लिए मौका नहीं। जीतू मानेरकर के पास गेंद, 2 रन पूरे, ये तो होना ही था। बढ़िया ओवर समाप्त हुआ। ये देखिए चाइनामैन कितनी टर्न हुई और कितना ओहो। उछाल। आज प्रेट हॉक का जन्मदिन है, चाइनामैन के बादशाह, और ये देखिए क्या खूबसूरत चाइनामैन की थी वहां पर सूरज जोशी ने। 3 ओवर के बाद 23 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये अक्सर हम देखते हैं जब भी परशुराम टावर स्टेडियम में मैच होता है, सूरज चाइनामैन गेंदों का ज़्यादा उपयोग करते हैं अपनी गेंदबाजी में, और जब भी करते हैं गेंद उनकी काफ़ी घूमती है और उछाल ज़्यादा मिलता है, ये खास बात रहती है। एक प्लस पॉइंट ग्राउंड में है कि आज जीतू मानेरकर खेल रहे हैं और अच्छे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने गेंदबाजों को, कप्तान सूरज के साथ। गेंदबाजी के लिए आफ्ताब को कंटिन्यू नहीं, आफ्ताब की जगह पे अक्षय को बुलाया गया है। ये अक्षय तो एकाएक पिक्चर में जब आए थे, जब नवाब स्पोर्ट्स को इन्होंने अजीबो गरीब 6 लगाया था मिड विकेट पर। महेश ठाकरे को भी उन्होंने रिवर्स 6 लगाया था एमजे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में। तेईस रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। कल पहला मुकाबला बी इंडियन बनाम अलनूर, दूसरा एनआर बनाम दशकता च्याविंद्रा, तीसरा प्रार्थना बनाम वकी स्पोर्ट मापुली, चौथा मयूरेश बनाम नवाब और 5वां बंटी बनाम पाइनियर। आज काफी तेज हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है। आज के हाइलाइट्स में अल्पेश चौधरी की 39 की इनिंग, आलोक मुकादम की 39 की इनिंग और अहमश बलेरे का अर्धशतक। फुल टॉस गेंद भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग लेग और बैकवर्ड स्टॉलिंग बाउंड्री पर। नहीं आए, इस तरह फुल टॉस कर दिया था उन्होंने। आसान सा मौका बैट्समैन के लिए, बहुत अच्छी तरह से खेला उसको और महत्वपूर्ण 6 रन अर्जित किए। 35 पे पहुंचा है स्कोर। आज ये भी तो बालाजी के लिए फिक्र है कि सुफियान शेख नहीं है, आज विनोद पाटिल नहीं है। हमारे बीच रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम अंसारी साहब आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। वंजार पार्टी इलाकों में हमारा टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है, वहां के ज्वाइंटर से रिक्वेस्ट है कि पहुंचाए। 997 SMP 884 डेन चैनल और 335 ट्रिपल एस। गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय, राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, गेंद को खेल दिया दूर से, अब अभी नहीं रोक पाए। 4 रन। जैसी गेंद वैसा शॉट, अपनी तकनीक को दर्शाते हुए बैट्समैन जुरेर
एक कप्तानी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन यहाँ से अब रन बनना शुरू हो गए हैं और चिंता का कारण हो सकता है बालाजी के लिए। बालाजी की आज उतनी मजबूत बल्लेबाजी नहीं है, विनोद नहीं है। इस मरतबा फिर से नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक, बल्ले के मुंह को खोला। बहुत बढ़िया फील्डिंग जीतू मानेरकर की, शॉर्ट थर्डमैन पर 1 रन। स्कोर 34 रनों पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, लॉन्ग ऑफ पे आफ्ताब ने गेंद को उठाया और बैट्समैन रन आउट। हालांकि वहां पे विकेट गिरता हुआ यहां पर तीसरा और कुल स्कोर है 35 रन। बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं पापा, जबकि कप्तान आवेश, कप्तान जुरैर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करें अक्षय का। इस मरतबा लिफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर कासिम बाबू गेंद के नीचे, लेकिन कैच छूटता हुआ। आसान सा कैच छूटा है, जज किया था उन्होंने। ऐसे जब कैच छूटता है तो काफी दुख होता है फील्डर को। काफी दूर से आए थे, काफी मेहनत की थी उन्होंने कैच के लिए। लेकिन जुरैर को देखिए, अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, यस, गेंद उनकी उंगलियों पर लगी है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अक्सर जख्मी रहते हैं, उसमें एक नाम कासिम बाबू का भी है, क्योंकि डाइव भी बहुत लगाते हैं। अबू साथ हमेशा कुछ ना कुछ क्रैम्प्स महसूस करते हैं। खास तौर पर तेज गेंदबाजों की फिटनेस का बहुत इशू रहता है। आप क्रिकेट के साथ और भी खेल खेलते हैं तो फिर मुश्किलात पेश आती। जकी अंसारी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। राइट आर्म राउंड विकेट। इस मरतबा लिफ्ट कर दिया गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री पे खिलाड़ी आउट हो गए, कप्तान जुरैर। उनके वालिद मोहतरम जकी अंसारी ने यह एंट्री की और वो आउट हो गए 21 रन बनाकर। अब इसे गुड लक कहे या बैड लक कहे, लेकिन अच्छी पारी खेली उन्होंने। बहुत अच्छी की, बिग एंड दिए जा रहे हैं उन्हें। 37 रन में 4 विकेटों के नुकसान पे। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स। गेंदबाजी के लिए आप सूरज को कंटिन्यू रखा गया है। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37 रन। जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, सामना करेंगे बैट्समैन शादाब। आफ्ताब उर्फ राजू, हमारा आपका और सबका राजू इस वक्त जेंटलमैन नहीं बल्कि डीजे मैन बना हुआ है।
वसीम अंसारी हमसे जुड़ते हुए, बहुत अच्छी गेंद, लहराती हुई, बल खाती हुई। ये देखिए काफी मोमेंट था, टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की जानिब निकली थी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, बहुत अच्छी गेंद, निकल के मारने की कोशिश, करीब रखा था बैट्समैन के। बल्लेबाज की गेंद बल्ले को ही नहीं टकरा रही। सूरज जोशी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, फिर से बढ़िया गेंद, ऊपर खेल रहे हैं गेंद के। और सूरज जोशी को खेलना वैसे भी इतना आसान नहीं है। हालांकि एक चौका जरूर लगाया था रिवर्स शॉट में कप्तान जुरैर ने। सूरज, एक और डॉट गेंद। ये बैट्समैन बहुत परेशान है, कुछ लेते क्यों नहीं, मेरा मतलब है रन क्यों नहीं ले रहे, जिस तरह बल्ले पे उनके गेंदे नहीं आ रही। 4 डॉट गेंदे, दबाव बढ़ाती हुई एफआर स्पोर्ट्स पे। एक और डॉट गेंद, 5 डॉट गेंदे। और हमारे बीच समदनगर के कैप्टन भी जुड़ते हुए, असद, साथ में महाज भी हैं। ये देखना है कि छठी गेंद बल्ले को टकराती है नहीं। हाँ, फुल टॉस दिया, गेंद को लिफ्ट कर दिया, मेडन विकेट हासिल किया है सूरज जोशी ने। 2 ओवर में कितने रन दिए कुल मिलाकर सूरज जोशी ने, और 1 विकेट लिया। किफायती गेंदबाजी, 2 विकेट ली। किया था, निकल के मारा था, जमीन के सहारे 4 रन। स्कोर 41 पे पहुंचा है। इस मर्तबा अजीब व गरीब शॉट, दबा के खेला हुआ स्ट्रोक। एक रन से स्कोर 42 रनों पे पहुंचा है बालाजी स्पोर्ट्स का। क्या जब दूसरी बल्लेबाजी आएंगी जीतू मानेरकर ओपन करेंगे? सोमनाथ बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं।
आफ्ताब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट थ्रो और बैट्समैन आउट। कोई भी रन नहीं, इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। कोई भी रन नहीं बना है और स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 41 पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को गए हैं शानू सोनू, जबकि सामना करेंगे पापा। 42 रन में, जैसा बता रहे हैं हमारे ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन। इस मरतबा ड्राइव किया, फुल पे लेके ऑन साइड में, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं पूरा करते हुए। 44 पे पहुंचा स्कोर एफआर स्पोर्ट्स का 6 विकेटों के नुकसान पे। आफ्ताब कितनी गेंदें बची है आखिरी ओवर की? 2 गेंदें बची है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, फुल टॉस गेंद और कैच छूटा वहां पे, ओवर थ्रो हुआ है, बैकअप किया है कप्तान ने, उनसे भी मिसफील्ड होता हुआ तीसरे के लिए पलट चुके हैं और 3 रन पूरे। इन 3 रनों से स्कोर 47 पे पहुंचा है। एक गेंद बची है कुछ करने के लिए एफआर स्पोर्ट्स के लिए। आफ्ताब इस मरतबा मोड़ने की कोशिश, पैरों पे निशाना, सिर्फ 1 रन और कुल मिलाकर रन बने 48। 49 रनों की चुनौती रखी है बालाजी के सामने। खेल की जब शुरुआत होंगी तो आप तक आंखों देखा सुनाएंगे अजय घरत।
इसका मतलब और मैदान में 2 सूरज ओपन करने के लिए। आफताब और सूरज, मैं क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण आफताब की। इतने तेज हो गए इंसान। उनचास रनों की चुनौती बालाजी स्पोर्ट्स के सामने मुकाबला जीतने के लिए। आज का ये आखिरी मैच है। अजय गरत, हालांकि आप सीख रहे हैं लेकिन आप आफताब और मेहताब से थोड़ा सा दूर रहे तो बेहतर है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा बेताब भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2017 8वें दिन का ये अंतिम मैच। बालाजी स्पोर्ट्स की पारी। बालाजी के 2 सूरज, आफताब और सूरज क्रीज पर। यह बड़ा ही रोचक है कि आफताब से पारी की शुरुआत कर रहे हैं कैप्टन। पहली गेंद का सामना करेंगे आफताब। बॉलिंग के लिए आमिर तैयार होते हुए, अपने कंधे खोलते हुए। हाजी समद से एंड से पहला ओवर लेकर आफताब बायात के गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी दाहिने हाथ से करते हैं। पारी की पहली गेंद फुल टॉस मिड ऑफ के ऊपर से निकाल दिया है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन चौके से शुरुआत की है आफताब ने। इस बार थोड़ी सी नीची रही थी गेंद, लेकिन दिशाहीन। वाइट का इशारा। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से हम देखें तो 8.17 रन प्रति ओवर का। इस बार मिड ऑफ पर खेला है 1 रन के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि सर्कल के ऊपर जो खिलाड़ी रहते हैं पावर प्ले के ओवर्स में सिंगल रोक नहीं पाते हैं टेनिस क्रिकेट में। बल्लेबाज आसानी से 1 रन पूरा करते हैं जब भी सर्कल के ऊपर गेंद जाती है, सर्कल के एज पर। सूरज अब स्ट्राइक पर आते हुए। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। 2 ओवर में 1 मेडन रखा उन्होंने। 8 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। कई मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं इस सत्र में। बेहतरीन शॉट, पहले बाउंस पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सूरज के लिए इस तरह की गेंदें बहुत आसान। लैप स्वीप किया था, वहां पर थोड़ा सा अपने आप को झुका लिया था और स्वीप कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। ये देखिए, बहुत खूबसूरत शॉट। एफआर स्पोर्ट्स ने जो स्कोर बनाया है 48 रन, हालांकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्कोर है जिस पर वो संघर्ष कर सकते हैं। उसके लिए शुरुआत में विकेट्स निकालने बहुत जरूरी।
रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंच चुकी है, 10 रन। बल्ले का ऊपरी सिरा, किस्मत वाले रहे सूरज जोशी, विकेट कीपर के पीछे जाकर गिरी थी। शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन। फिर से स्वीप करने का प्रयास किया था, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल जिसकी वजह से टॉपेज लगा था। आफ्ताब को पिंच हिटर के तौर पर ऊपर भेजा गया है। क्लास रिवर्स स्वीप, 4 रन। तो आफ्ताब भी दिखा रहे हैं कि वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अभी तक हमने उनको गेंदबाजी के लिए ही देखा है ज्यादातर, लेकिन ये देखिए किस तरह से रिवर्स स्वीप खेला है। वाह, झाड़ू स्ट्रोक, बहुत बेहतर टाइमिंग, प्लेसमेंट लाजवाब, अफलातून शॉट। खर्चीले साबित हो रहे हैं आमिर। इस बार डाउन द ग्राउंड, सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई गेंद, 4 रन और। जबरदस्त शुरुआत आफ्ताब की। पहले ओवर के बाद 19 रन बिना किसी नुकसान के बालाजी स्पोर्ट्स। सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत शॉट, आपने आपको थोड़ा सा रूम दिया, पीछे हटे लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर आते हुए और सामने की तरफ उछाल दिया बॉलर के सिर के ऊपर से। अपने आप को लाइन से ही अलग कर दिया था वहां पर। 1 ओवर और 19 रन, आधा मुकाबला तो पहले ही ओवर में जीत लिया है। टॉस जीता था इस मैच का एफआर स्पोर्ट्स के कैप्टन जुरेर ने, और खुद कैप्टन पारी की शुरुआत करने आए थे। उन्होंने ही अच्छी बल्लेबाजी की, 21 रन बनाए। उनके अलावा अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 6 रनों का योगदान दिया था मोइनुद्दीन ने, 5-5 रन बनाए थे पापा और आमिर ने। नए ओवर लेकर सोनू। अब कप्तान भी क्या करे जुरैर, क्योंकि पहले मैच में 4 छक दिए थे, 2 नए गेंदबाज लाए थे, एक ने तो 19 दे डाले। सोनू के सामने सूरज, शॉर्ट राइजिंग गेंद, अच्छी गेंद थी, बीट किया वहां पर। और जिस तरह से रिएक्शन गेंदबाज का आया था, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद किनारा भी लगा था। जी हाँ, विकेट कीपर कैच नहीं कर पाए। कट किया, एक और कैच छूटता हुआ। अच्छी कोशिश बैकवर्ड पॉइंट पर, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, अंदर ढकेला आप जाकर। तब तक 2 रन पूरे किए सूरज ने। हवा में खेल बैठे थे, कैच बन रहा था लेकिन मुश्किल अवसर था। किस्मत के सहारे इस समय बैटिंग करते हुए सूरज। पहले ओवर में भी एक टॉपेज लगा था जो खाली क्षेत्र में जाकर गिरी थी गेंद। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से छकाया सूरज को। स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकल गई। बालाजी का स्कोर इस समय 21 रन बगैर किसी नुकसान के। 3 चौकों की मदद से आफ्ताब 13 पर खेल रहे हैं और सूरज जोशी 7 पर। कट करने की कोशिश, बाल बच गए, बहुत अच्छी गेंदबाजी। परेशानी में डाला हुआ है सूरज को सोनू ने। सूरज कभी ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हैं तो कभी लेग स्टंप के। लेकिन सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, ना कि मगरिब से। एक और अच्छी गेंद, उछल के मारने की कोशिश।
कमाल का ओवर ये रहा है अभी तक। 2 रन केवल बने हैं आखिरी गेंद पावर प्ले की शेष, और 4 बार बीट किया है इस ओवर में सूरज को। 2 मौकों पर कैच छूटे हैं। इस बार लॉफ्ट कर दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। देखना है, अंपायर ने 6 रनों का इशारा किया है। अब अपना डिसीजन बदलते हुए रिप्ले में भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो नहीं होगा, जो टूर्नामेंट आप खेलेंगे उसके दूसरे टूर्नामेंट में भी आप गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि नवीन जो टीम के कैप्टन है विनर के, वो इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर पाए। उन्हें मापोली क्रिकेट धमाका में चक घोषित किया था। इस मर्तबा सम्मान दिया वहां पे सूरज ने। अट्ठाईस रन बिना किसी विकेट के। 27 रन में सूरज खेल रहे हैं 10 पर। काफी डॉट गेंदे भी खेल चुके हैं। इस मर्तबा अंधाधुन खेला, रन के लिए जाना चाहते थे, बच गए, लेकिन यहां 4 रन का बचेंगे। देखना है लेग बाई है या बल्ले से हैं। अंपायर का लेग बाई का अब इशारा। ये फारूक बर्डी का कहना है कि
कमेंटेटर्स को भी हर बात पे ध्यान देना चाहिए। इस चौके की मदद से स्कोर 31 पे पहुंचा। हमारे बीच दामाद के बहुत मशहूर ताजिर अयूब टिवाले साहब पहुंच चुके हैं। आपका हम इस्तेकबाल करते हैं, वेलकम। इस मरतबा गेंद को छोड़ दिया वाइड। 2 रन स्कोर में और बढ़ते हुए 1 रन, स्कोर 32 पे पहुंचा। इस मरतबा गेंद को भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग पर। 6 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट सूरज के बल्ले से। खेला था, स्लॉक स्वीप किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। कितने रन चाहिए अब? 11 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट्स को। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, फील्डर मौजूद, लेकिन कैच भी छूटा और सपना भी टूटा। 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 39 रनों पे पहुंचा स्कोर। 39 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। वीआईपी डाइस पे इस वक्त अशोक पाटिल हैं, जकी अंसारी और ये अयूब टिवाले साहब को आप देख सकते हैं। हमारा टेलीकास्ट इस वक्त बेंगलुरु, राजस्थान, चिपलोन, रत्नागिरी, तलोजा, पनवेल, दामाद, कसारा, नेरल, करजत, जवार, मोखाड़ा, वाड़ा सभी इलाकों में पहुंच रहा है एसएमपी चैनल पे। अयूब टिवाले का ताल्लुक दामाद से है, जिनके गांव में भी ये टेलीकास्ट इस वक्त दिखाया जा रहा है। एनसीपी कप 3 ओवर की समाप्ति, 39 रन बिना किसी विकेट के। कितने रन चाहिए? सिर्फ 10 रन चाहिए बालाजी को 10 विकेट से जीतने के लिए, जबकि ये 10वां साल है एनसीपी कप का और सिटी क्रिकेट का ये 10वां टूर्नामेंट है। सब 10-10 पे रुकता हुआ। गेंदबाजी कर रहे हैं सोनू, सामना करेंगे सूरज जोशी। कुल मिलाकर 18 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, गेंद को खेल दिया उन्होंने बैकआउट ऑफ द पॉइंट, डीप में 1 रन। स्कोर 40 पे पहुंचा है। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंची। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को काफी मेहनत करना पड़ी। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने, तीसरे के लिए जाना चाह रहे, मना किया वहां पर। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रनों पे पहुंचा है, 42। मरतबा लिफ्ट कर दिया, 4 रन।
आड़े बल्ले से खेला, शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी थे, रिकोशेज होगी, उनके हाथों से टकराने के बाद गेंद 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 47 रनों पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। एक तरफा जीत हासिल करती हुई बालाजी चारों शाने जीत कर दिया FR स्पोर्ट्स को। इस मर्तबा पंच करते हुए 1 रन जरूर बना है। अब शायद कप्तान सूरज चाहते हैं कि विनिंग शॉट आफताब लगाए, और विनिंग शॉट लगाते हैं तो फिर आफताब की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहेगा। उनको क्या पता था कि ओपन भेजा जाएगा, आखिर तक बैट कैरी करेंगे। इसके साथ ही गेंद शॉर्ट मिड विकेट पे, कोई रन नहीं। बालाजी के पास भी समय बहुत पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब 1 रन चाहिए और सूरज पानी भी मांग रहे। गेंदबाजी के लिए वही गेंदबाज मोहिनुद्दीन। छोटे रनअप से मुड़ते हुए इस मर्तबा गेंद को खेला। अब सूरज ना टीम से खेल रहे हैं, बल्कि जो दर्शक जाने की तैयारी में है उनको भी रोके रखा है। स्वीप कर दिया और गेंद जाएंगी। इस वक्त डीप फाइन लेग पर इस मैच को जीत लिया है बालाजी ने। आज की शाम जीतू मानेरकर और बालाजी स्पोर्ट्स के नाम कॉन्ग्रेचुलेशन। सूरज जोशी इस मैच के मैन ऑफ द मैच वही है जो लगातार मैन ऑफ द मैच लेते जा रहे हैं, और नाम एक ही, सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी। 2 विकेटें ली, 8 रन दिए, 1 ओवर 1 मेडन, कुल मिलाकर 21 रन पे नॉट आउट आए। मैन ऑफ द मैच सूरज जोशी। आइए सूरज जोशी, आपको हम मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं जकी अंसारी और अशोक पाटिल के हाथों से। जकी अंसारी जीत की शुरुआत जिल्लू भाई की मिठाई के साथ